Hello, grade 4. This is our sixth lecture. Today is 10th April, Saturday. Today's objectives are improving our listening and speaking skills, trying to answer some comprehension questions. So let's begin our lecture today. Grade 4, open up your textbook to page number 10, your comprehension questions. So your first is part A, question 1A. How are the stars appearing in the sky? So remember yesterday we did a reading of a poem called A Night in June. So the first question asks us, how are the stars appearing in the sky? कि जब कल पोइम हमने पढ़ी थी उसमें उन्होंने सितारों के बारे में कैसे कहा था कि स्टार्स जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता आसमान पे कैसे ज़ाहिर हो रहे हैं, how are they coming, how are they appearing? They are coming by twos and threes. ठीक है, ऐसे ही हो रहा है ना कि दो दो करके तीन तीन करके जो है स्टार्स आसमान पर नज़र आ रहे हैं. Yes? Now let's move to our question B. Have the birds stopped their singing? क्या birds ने अपनी singing जो है वो stop कर दी है जैसी ही रात हुई है? No, the birds are still singing. Birds जो है वो अभी भी जो है वो sing कर रहे हैं. ठीक है, क्योंकि वो thrushes और cuckoo की स्पेशली बात करते हैं. They're singing. They have not stopped their singing. See, where are the little birds? जो little birds हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं? Where do they sit or where are they singing? They are singing in the nests or the trees and bushes. वो bushes में है या trees में है, वहाँ पे बैठ के they are singing. Okay? And the little birds are in the nest as well. Little birds usually nest में होते हैं. ठीक है? Now let's move to our part D. What sounds can be heard? किस तरह की आवाज़ें आपको सुनाई दे रही हैं? तो कौन कौन सी आवाज़ें जो हमारी पोइम जो हमें बताती है कि हमें we can hear. Let's go back to our poem and have a look again to see what kind of sounds can we hear in the poem. So we can hear the little birds piping. So little birds are piping. Wind rushes. Water that gushes. Cuckoo's cry, sovereign cry. ठीक है, so we have sounds of birds singing, we have wind rushing, we have water gushing and we have cuckoo's cry. So we have हमारे पास चार डिफरेंट किस्म की वॉइसेस हैं, ये साउंड्स हैं जो पोइम में उनका जिक्र हुआ हुआ है. ठीक है, these are the sounds that we can hear in the poem. Understood? Now let's move to our part E. What fills the sky? एकदम से poem जो है, what does the poem say that suddenly the sky is hollow but suddenly there is some sound that fills the whole sky? कि ऐसी क्या वॉइस आती है, ऐसी आवाज़ क्या आती है जिसकी वजह से पूरा आसमान जो है वो उस आवाज़ से गूंजना शुरू हो जाता है. What is that sound? That is the cuckoo sovereign cry. वो कुकू की सिंगिंग की वॉइस है. ठीक है. Now let's move to our part F. Why do you think the stars appear in the way described in the poem? अब आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था कि स्टार्स जो हैं वो आसमान पे किस तरह ज़ाहिर होते हैं और हमने कहा था बाई टूज़ एंड थ्रीज़ में, तो कि आहिस्ता आहिस्ता कहीं जगह पे दो निकले हुए, कहीं किसी जगह पे तीन निकले हुए. तो अब हमारा ये क्वेश्चन है कि आपके ख्याल से स्टार्स जो हैं वो इस तरीके से पोइम में क्यों आ रहे हैं, मतलब कि इस तरह क्यों निकल रहे हैं आपके ख्याल से? बिकॉज it's not a full night time, it's not fully night yet, it's still डे लाइट समवेयर. क्योंकि देखिए अभी अभी सूरज जो है वो गरूब हुआ है. सो इट इज़ नॉट सडनली डार्क, इट्स स्टिल बिट ऑफ लाइट इज़ देयर and it's not fully night yet. That is why the stars are appearing slowly. That is why it seems like they are appearing in twos and threes. क्योंकि देखिए अभी सूरज गरूब हुआ है, अभी हल्की हल्की आसमान पे रोशनी है. आपको पता है मगरिब जब होती है, when the sun goes down, it does not appear to be night time suddenly. एकदम से तो रात नहीं होती, आपको हल्की हल्की रोशनी आती है मगरिब के बाद भी और हल्के हल्के सितारे नज़र आते हैं. तो इसी तरह पोएम में भी यही हो रहा है. ठीक है जी. Why do you think the poet calls the cuckoo's cry sovereign? आपके ख्याल से पोएम में कुकू की क्राई को sovereign क्यों कहा गया है? So if you know what sovereign means, it means great, powerful, might. सॉवरन का मतलब होता है ऐसी चीज़ जो बहुत ही पावरफुल हो, जो सब चीज़ों पे हावी हो जाए. तो मे बी द कुकू sings so beautifully and so loudly that it fills up everything around. That is why it is called sovereign.
look, in the poem we have got a lot of other sounds as well. We have got the singing of other little birds, we have got the sound of the wind and the water, but suddenly when the cuckoo starts singing, he kind of overtakes all these voices, and that is why he kind of becomes a sovereign cry in the whole poem. देखें, पोइम जब हम पढ़ रहे थे तो पोइम में बहुत सारी डिफरेंट किस्म की आवाज़ें, पानी की आवाज़ है, हवा की आवाज़ आ रही है और बाकी परिंदों की गाने की भी आवाज़ आ रही है, ठीक है। लेकिन जब कुकू गाना शुरू करता है तो वो क्या करता है, उसकी आवाज़ इन सारी आवाज़ों से ज़्यादा ऊंची होती है और उसकी आवाज़ पूरे आसमान पे गूंजती है। तो उसकी आवाज़, उसका गाना इतना पावरफुल है, इतना ऊंचा है कि वो सारी बाकी आवाज़ों को पीछे छोड़ देता है, इसलिए उसकी क्राई को सॉवरन कहा गया है, ठीक है। Now let's move to our question 2. The little birds are piping yet. This sentence means, अब इस sentence का क्या मतलब है? The birds are little but they are piping, कि जो परिंदे छोटे हैं लेकिन वो गाना गा रहे हैं. The birds are still piping even though it is late, कि birds जो अभी तक गाना गा रहे हैं जबकि बहुत लेट हो चुका है. The birds are piping but, birds जो हैं वो गाना गा रहे हैं लेकिन. तो इसमें से कौन से सेंटेंस जो है वो इसका मीनिंग है? The little birds are piping yet, तो इसका आप ये वाला करेंगे. इसका मतलब है The birds are still piping even though it is late, कि birds अभी तक गाना गा रहे हैं जबकि बहुत लेट हो चुका है, ठीक है. Now question B is, what time of day it is? डे का मतलब कि दिन का कौन सा वक्त हो रहा है ये? इट इज़ इवनिंग टाइम, ये तो आपको पता है, शाम का वक्त है. सी, वेयर आर द बर्ड्स पाइपिंग, और वो जो बर्ड्स हैं वो कहाँ पे बैठे हुए हैं, कहाँ पे गाना गा रहे हैं? दे आर इन द ट्रीज एंड बुशेस एंड इन द नेस्ट, वो अपने घोंसले में बैठे हुए हैं, दरख्तों पर हैं और कुछ झाड़ियों में हैं, ठीक है. डी, व्हाट काइंड ऑफ बर्ड्स आर मेंशन इन द पोएम? पोइम में जो है किस किस्म के बर्ड्स का जिक्र किया गया है? तो यू नो देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ बर्ड्स इन द पोएम. पोइम में सिर्फ 2 किस्म के परिंदों का जिक्र किया गया, थ्रशेस एंड कुकू. कुकू और थ्रश का जिक्र किया गया है, ठीक है. नाउ क्वेश्चन 3, नोट डाउन द राइमिंग वर्ड्स इन द पोएम. पोइम के अंदर जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनको आप लिखें. लेट्स गो बैक टू आवर पोएम, और जो राइमिंग वर्ड्स हैं उनका हम पेयर बनाते हैं, ठीक है. सो वी हैव द सन हैज़ लॉन्ग बीन सेट, द स्टार्स आर आउट बाई 2s and 3s. The little birds are piping yet. Set, yet दोनों राइम कर रहे हैं. Among the bushes and trees, there's a cuckoo and 1 or 2 thrushes. Bushes, thrushes राइम कर रहे हैं. Thrushes and rushes राइम कर रहे हैं. Gushes भी राइम कर रहा है, ठीक है. ये आपके राइमिंग वर्ड्स हैं, ठीक है. आपके राइमिंग वर्ड्स और भी हो सकते हैं. हमने जैसे किया set, yet, trees, trees, thrushes, rushes, cry, sky. Okay, now do the rhyming words form a pattern? अच्छा, let's go back to our poem, page number 9, और इसका poem का हम वो करते हैं, rhyming scheme find out करते हैं, ठीक है. The sun has long been set, तो set जो है वो आपकी एक किस्म की आवाज़ है, एक rhyme है, तो उसको आप A लिख लो. The stars are out by 2s and 3s. 3s जो है वो set के साथ राइम नहीं कर रहा, तो ये different sound है, तो आप यहाँ पे B लिखें. The little birds are piping yet. Yet and set राइम कर रहे हैं, तो आप yet के आगे भी A लिख दो, क्योंकि ये सेम साउंड है set वाली. Among the bushes and trees. Trees और trees राइम कर रहे हैं, ये सेम साउंड है, तो आप trees के आगे B लिख दो. There's a cuckoo and 1 or 2 thrushes. थ्रशेस जो है ना तो वो सेट वाले के साथ राइम कर रही है, ना ही वो थ्रीज के साथ कर रही है. इट इज़ अ न्यू साउंड, ये बिल्कुल एक नई साउंड है, तो आप सी लिखो. एंड अ फार ऑफ विंड दैट रशेज, थ्रशेस और रशेज राइम कर रहे हैं, तो आप सी लिखो. एंड अ साउंड ऑफ वाटर दैट गशेज, थ्रशेस, रशेज, गशेज अगेन सेम है, तो आप इधर सी लिखो. एंड द कुकू सॉवरन क्राई, क्राई जो है ना तो आपका सेट वाले से राइम कर रहा है, ना थ्रीज वाले से, ना थ्रशेस से, ये न्यू साउंड है, तो आप डी लिखो. फिल्स ऑल द होलो ऑफ द स्काई, स्काई जो है वो क्राई से राइम कर रहा है, तो डी. तो आपकी पूरी पोइम की राइमिंग स्कीम क्या होगी? A B C D, ठीक है. और जैसे आपका ये पहला वाला क्वेश्चन था जिसमें आपने राइमिंग वर्ड्स अपने पोइम के लिखने थे, तो आपके देखें सेट येट राइम कर रहे हैं, थ्रीज ट्रीज राइम कर रहे हैं, थ्रशेज रशेज गशेज राइम कर रहे हैं, और क्राई और स्काई राइम कर रहे हैं, ठीक है. अंडरस्टूड. लेट्स मूव बैक टू आवर पेज 10. फाइंड द ऑड वन आउट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट. आपको ये लिस्ट दी हुई है, इसमें से अब आपने देखना है कौन सा वर्ड नहीं जाता, ठीक है. एक दफ़ा सारे पढ़ते हैं. सेट, मेट, डेट, येट,
get, eat, threat. सारे वर्ड्स राइम कर रहे हैं, ईट राइम नहीं कर रहा, तो इसको आप सर्कल कर लो. फ्रीज, ईज, पीस, ट्रीज, फ्रीज, पीस, ब्रीज. पीस यहाँ पे राइम नहीं कर रहा. सी, रशेस, गशेस, बुशेस, क्रशेस, फ्लशेस, थ्रशेस. यहाँ पे बुशेस राइम नहीं कर रहा. डाई, स्काई, क्राई, फ्राई, हाई, ने, बाय. यहाँ पे ने राइम नहीं कर रहा. ठीक है, अंडरस्टूड? So that was our today's lecture. I hope you understood all the concepts and all the things that we discussed in the lecture today.